First past the post has over the years been proved to be a majoritarian system. So what the PR does is it gives voice to each and every section of the society. Let's say persons with disability. We have 2% of population, but today आज की तारीख में कोई भी हमारे मुद्दे पे बात नहीं करता. लोग हम दिव्यांग एक अच्छा शब्द हो गया, बट जो इश्यूज है उन पे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि आज हम किसी के लिए एक वोट बैंक नहीं है. तो एक पीआर में मुझे लगता है कि एक हमारे जैसा माइनॉरिटी भी एक वोट बैंक होगा, जब आपका 2% वोट शेयर भी किसी के लिए मैटर करेगा पार्टीज के लिए. और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें पीआर की बात करें बगैर तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही एक्सक्लूजनरी सिस्टम होगा. पीआर की वजह से नेपाल में ये देखा गया वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को भी मौका मिला है. I am right now in JNU, and I have got Shaurya Sood, who is doing PhD at Center for Political Studies, and his PhD is very relevant. He is working on electoral reforms and the question of diversity, and his MPhil was also on the same issue, slightly different from his PhD topic. He worked on Constituent Assembly debates. So you know it very well that in India one election one nation debate is going on, and since he is young scholar looking at this issue, so I have asked Shaurya to share his view. Shaurya, what do you think, how could the concern of the marginalized community can be accommodated? What are the main issues? Good afternoon, sir. Thank you for giving me the opportunity. Sir, the issues, this is a very important issue, one nation, one election, and I am working on electoral systems primarily looking at this aspect, the minority representation, which is not there in the first past the post. The first past the post has over the years been proved to be a majoritarian system, which only is a manufactured majority, as Lipjard would say. It is not true reflection of the democratic will also. Like in the 2014 elections, BJP had 30% of vote share, but it had got 52% of seats. So, similarly, in this we see in 2019 elections also, with 37% of, they have won like more than 50% of seats, and a lot of many times it has happened that party with less vote shares have been able to form the government in this system. So this is not a truly democratic system. And in the Constituent Assembly debates, I have also found that in we had a choice between the first past the post and PR, and a lot of members in the Constituent Assembly also wanted PR to be implemented, but it could not be because there was low level of literacy rates, and it's a complicated system, so we didn't adopt at that time. But today it seems to be more than relevant, and a lot needs to be studied in this system. So you talked about representation of, say, upper caste, and why only this. So sir, this system only appeals to a certain section of society. It does not give a fair voice to all sections of the society, because you see, any party can win elections based on polarizing the elections in their favor. So they need not appeal to every section of the society. So what the PR does is it gives voice to each and every section of the society. Let's say persons with disability. We have 2% of population, but today आज की तारीख में कोई भी हमारे मुद्दे पे बात नहीं करता. लोग हम दिव्यांग एक अच्छा शब्द हो गया, बट जो इश्यूज है उन पे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि आज हम किसी के लिए एक वोट बैंक नहीं है. तो एक पीआर में मुझे लगता है कि एक हमारे जैसा माइनॉरिटी भी एक
वोट बैंक होगा, जब आपका 2% वोट शेयर भी किसी के लिए मैटर करेगा पार्टीज के लिए। और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें पीआर की बात करें बगैर तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही एक्सक्लूजनरी सिस्टम होगा जिसमें हम अपने एक दबे कुचले वर्ग को समाज के हम उनको एक इग्नोर करेंगे। और जैसे विद द मुस्लिम्स एंड द अदर रिलीजियस मिनोरिटीज, तो ये एक्सक्लूजन हमें इसलिए भी दिखता है इलेक्शन में पोलराइजिंग, क्योंकि हम पार्टीज को एक मौका अच्छा मिल जाता है क्योंकि उनको। लेकिन हाँ, पोलराइजेशन भी मुझे लगता है पीआर की वजह से कम होगी। एक ये भी पाया गया पीआर में कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटीज़ में भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। इस पर परंपरा की बड़े अच्छी स्टडी है कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटीज़ में भी, कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम इंडिया में भी हम देखते हैं इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है और इतनी ज़्यादा पोलराइज सोसाइटी है, तो हम इसको एक मौका देना चाहिए। और इसी पे मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ कि पीआर सिस्टम डाइवर्सिटीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट करता है। सोशल डाइवर्सिटीज़ मेनली जो एफपीटीपी में उनका शायद हम सोचते भी नहीं हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में हमें पीआर को एक बड़े ही गहराई से वी नीड टू एग्जामिन इट क्रिटिकली एंड केयरफुली, और हमें इट हैज़ बिकम मोर देन रेलिवेंट देन एवर। तो हम अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे सकूँ तो एक हमारा नेपाल पड़ोसी देश है, इसमें मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है। मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप स्टेट असेंबली में समझ लीजिए आप एफपीटीपी से वोट देते हैं और नेशनल इलेक्शंस के लिए पीआर होता है। तो 165 सीट्स नेपाल में एफपीटीपी से होती हैं और जो 115 सीट्स है उस पर पीआर में होता है। तो पीआर की वजह से नेपाल में ये देखा गया वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को भी मौका मिला है जिनको पहले एफपीटीपी में नहीं मिलता था। तो इसको एक मौका इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि अभी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक्स में पीआर के प्रति एक स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा है, शायद इसलिए लोग इस पर बड़ा हेजिटेंट हैं। बट मुझे लगता है थोड़ा पीआर को अगर हम ओपन दृष्टिकोण से देखें तो ये इतना भी एक इसका इंस्टेबिलिटी एक थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। बट हाँ, ऐसी बहुत सी जगह भी है जहाँ पीआर बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। तो हमें एक पीआर को चांस देख के देखना चाहिए और इसी पे मेरा काम है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत